Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ इवनिंग स्टडी ग्रुप। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के इस सायंकाल के अभ्यास सत्र में स्वागत करता हूं। रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। We are on 28th session today. 28वें सत्र में हम लोग हैं। अपने सारे Zoom के पार्टिसिपेंट, we are recording this session, it will be uploaded on YouTube. और अपने सारे Facebook के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के सत्र में स्वागत है। So let's all close our eyes. अपनी आंखें बंद कर ले। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे। Gurudev says it's worth dropping the past, either pleasant or unpleasant. गुरुदेव कहते हैं भूतकाल त्याग करने योग्य है, सुखद या दुखद। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और अपने भूतकाल को त्याग कर इस वर्तमान क्षण में आ जाए। यह वर्तमान क्षण नया है। इस वर्तमान क्षण की शुरुआत ओम के नाद से करते हैं। अपने शरीर के कण कण से ओम का नाद होने दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले Let us awaken the divinity within. गुरु का आवाहन कर ले। आवाहनम 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 पुनः पुनः गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर लें। Let us pray to the divinity.
अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति के अंदर तैयार हो रहे इंप्रेशंस, संस्कार, और यदि अब भी थोड़ा भाव अहम का बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। मुमुक्षत्व की राह पे चलने वाले हम लोग, मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग, यदि इस क्षण भी मुक्त हो जाए या बार बार लौट के आना भी पड़े किसी कारणवश, तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Gentle smile on your face. You may open your eyes. Jai Gurudev. So let's continue with our session. We are in chapter number 3 and we are going through the Leela Saraswati, Padmaraja and Saraswati Akhyam. The story of Leela Saraswati, Padmaraja and Goddess Saraswati. So we have seen how this Padmaraja and this Leela, very happy, joyful couple, they are leading their life very successfully. And suddenly the Leelavati gets the thought that will this be continuing over and over? Every single day we are getting older, and if my husband passes away before me, how will I live this life? All such worries starts hovering to the mind of Leelavati. And then she does all these things, and because of that she starts seeking the solution. She could not get the solution, but then after this, as she does not get a solution for that, she just go ahead and start doing the tennis, the tapasharya. So for this tapasharya, she does follow a specific routine in her life, and then Goddess Saraswati comes and gives her 2 boons. She asks for the 2 boons. That one thing she asked, that if my husband passes away before me, then in that case, let his soul may not pass through this mandapa. No, that mandapa akhyan is what we saw. And this particular thing, another thing is that whenever I remember you, you kindly come and bless me. You kindly keep guiding me over and over again. That these are the 2 boons Leelavati asked to the goddess Saraswati. Saraswati gives her 3 boon, and then she continues with her life with her husband. And one fine day, Padmaraja happens to no more. He is no more. He passes away. Now, this particular Leelavati get depressed, and then she remembers the boons of Saraswati and remembers, and then she asks for the guidance. Kindly guide me what needs to be done. So Goddess Saraswati comes there and she gives her some tips, that cover your body, husband's body completely within the flower, so that it doesn't perish, and his soul also will remain here. So she exactly does like this, and she also teaches her
the way to meditate and how when she can go into the other loka, no? Chidakash. So there is a concept of these three akashas are explained: the Bhuta Akash, the Chitta Akash, and the Chidakash. And she does like this, and she happens to meditate and get out of her this stool body, this grass level body, and then travels to the Chidakash. And then she happens to see that there is a Darbara is happening, there is a court that is going on. This Padmaraja has become 16-year-old king, and all the other activities are going through. She happens to see even the other people or the ministers who are there with her. Now she also sees them, and now she is really worried. Oh, is this entire Srishti has end? Are these people already died? With that worry, she comes back and become aware, and then she comes back to her stool body and opens up her eyes. Immediately she calls upon the meeting in the middle of the night, and the meeting everybody comes, and she becomes at least little bit consoled and little bit happy that okay, they are all here. But now this has raised many questions in her mind. So just she dissolve the meeting, comes back, and then remembers the goddess Saraswati. Now the goddess Saraswati appears in front of her, and now she starts questioning goddess Saraswati that what has just now happened. No, aho vichitra maya, she expresses. No, this is such a magical or miraculous experience that I'm getting here. And then she questions that whatever I saw that is real, or this is something which is I'm going through and with you, is that a real one? What is real? So I feel that something that is going on right now between you and me, this is real, and what I just saw, that is probably unreal. How can that happen? How can some the same people be appearing over there? So I don't think that whatever I saw in that Chidakash is real. That is how she expresses her opinion about it, and requests Saraswati to throw more light on this subject. So now Saraswati answers that, look, whatever you are saying now, that is also an illusion, and whatever that you saw there, that is also an illusion. But this is something is not convincing to Lilavati, and Lilavati continue to question this. So why such things happens? No, so Saraswati tells him it is because of that avidya. No, it is about the avidya, kama, and karma, and the vishayas that are arise, the desires that arise because of these things. Such things comes into picture. Immediately, Leela asks Saraswati, okay, I can understand that these particular things come from the sanskaras that we carry. So whatever the sanskara that this particular Raja carried, because of that only he started experiencing the new Srishti, and that is something which is imaginary in nature. No, but just like that, no, whatever this has happened that you think this is real, no, this thing opens up to the possibility of many possibilities. Now Leela says, yes, okay, fine, good enough, I understand this. This world is unreal. Despite it appears as real, it is just because of the past karma and things. No, say now Saraswati tells her that this world is unreal, and she wants to now explain this further to Lilavati because she doesn't seem to be still convinced about it, and she tells her the story of something called as this sansara. No? So how this sansara is, so she tells that, look, in that Chidakash, this sansara mandapa called sansara is created. No, so this bhuloka is created. So above that there is this space called Akash. Then there is this very beautiful descriptive explanation is given. Then there is this mountain called as Meru. No, it is just like a pillar in between this bhuloka and the Akasha.
No, then there is this Indradi and Indrani, all these things. Then there is a also the all the 14 Bhuvanas, no, Dalne, all the other lokas. No, then there is also this Swarga, Bhulok and Patal Lok, just like the 3 stories of a building. Hmm? All these things are there, just like there is this sun, it is just like an diya, no, just like a candle, it is there. And just like the ants have their homes, no, it's similar to that. All these people and all these cities and all these things is appearing over here. Hmm? So she continued to explain this, that this all this mandapa is just a creation of somebody called as Prajapati Brahmadev. No, so he has just uh, uh, created all these things, and then she tells another story to make Leelavati understand this thing more better. So today that she tells the story about there is one Brahman, and in this samskara, this samsara, that particular Brahman whose name is Vashishta, and he is living along with his wife called Arundhati, and they are living their life happily. They are having their own daily routines of following all the according to Shastras. They happens to go, and this particular Brahmana happens to go and watch. There is a king's, no, king is traveling around, so they happens to see um, the ceremony of that Raja is going along all these different path, and how he is enjoying it, all other apsaras with him, and how wealth he is carrying, and how he is sitting on a big elephant, no, swari wahan pe jo bola gaya. And there is a very descriptive explanation or varnan description of this scenery. Now this particular things that this particular Brahmana gets into entangled into the desires of experiencing the same life. He thinks that when will I get a chance to experience the similar kind of thing? What if I become a king and start experiencing all these bhogas? I also desire to be like this. So this is what exactly happens. And then one fine day, this Brahmana also dies, and then this particular Brahmana dies, and then he, as he has seen this particular desire, he is now in this life. What you see has appeared as a Padma Raja. You are the same, that Vashishta Brahman is same as Padma Raja, and that Arundhati is what you are. And he has just died there 8 days back only. And the same Arundhati also prayed to me just like you did. And she also asked for the similar kind of boon, that let not the soul of that Vishishta Brahmana to go outside that Gruha, their home. So now all these things are actually happening just in the Vashishta Brahmana's home, and she is now started seeing this as a dream. No? So now that is very radical, and Rani Leelavati is thoroughly confused now, and she expresses that I do not agree with you. Come on, how come this happens? No, it happens like, no, all these things, like you are telling me that a small ant can go and kill the elephant, a small bird can go and travel so many miles and miles, and all such visangatis, what is that called? So this is something like a fake thing. I do not agree with you. So here all such a kind of questions comes, and they are very obvious, that even those touches even our mind also, that how come that is possible, how come this can be real.
No? So how come just 8 days there, and how come we are experiencing all these questions? She starts asking. So Saraswati now answers her question that, look, Leelavati, all that what you are thinking, do not doubt on me whatever I am saying. See, I am a goddess Saraswati. Hmm? If I do not follow the dharma, if I do not follow, then what is the godhood in me? Na? We do not speak lie. No, हम लोग झूठ नहीं बोलते. We don't speak lie. So whatever I'm telling you is all. This is how it has happened like this. But again, even that also is not real, and this also is not real. Is something which I'm telling you again and again and again. Hmm? So this is what happens. So when she sees that, oh, whatever I saw that Padma Raja is ruling that thing in the Chidakash, that was a past. No, that was the future that I saw what is happening with him. Currently, I'm going through this. This is also you're calling as a dream. And you have shown me the past life. And in that also the same thing has happened. And all this thing that Brahmanas desire, he is just imagining about this life. Hmm? So just to understand that, Rani, Goddess Saraswati explained that, look, all these things are actually, whatever I'm telling you is the truth, but this is what is, all this is happening is not real. It is just an imagination in this. So like that, she continues this past and the current life and the future life. All these things are, though appears different, but they are just a bhranti. They are just an hallucination. They are just a brahma. So this is just like, she explains it further, that by looking at this, Leela is really surprised, and she expresses that, oh, I do not think that this is a real. No? How come all these things, how come this entire Raj Mandir hall which is there, how come it just exists as an imagination in that Brahman house? How come it's all there? Such kind of things Leelavati questions about all these things. So then Saraswati explains her the concept of this Disha and Kal. No? So she questions this, that how come only 8 days passed there and here we have lived so many years? How is that possible? Please explain this to me. How that is possible? No? So then she explains that, look, you are here right now. Yeah. So this concept of Disha and Kal, that itself is not real. That is also just, the Disha or Kal sapeksha hai. That is not real, because whatever you see here as some time, that may not be the same time in some other place. It could be different. That could be really different. So whatever you think that this particular thing, Disha and Kal, that also itself is imaginary in nature. That is what she explains. So Saraswati continued to explain her that how this entire universe itself is not real, which we have already seen. How this concept of Disha and Kal, how it goes, and whatever we imagine, the things, it appears as very long when you are happily living with your partner or spending some good time, how that time flies away. And when you are in bad state of mind consciousness, how even the one day appears like one full year. All these things, Saraswati explains. Even it happens to us when we are traveling, and a whole 2, 3, or 4 hours of journey passes just like that. And as you come near to your home, it appears that every moment you are sitting in that car, you are waiting for that thing to happen now. When will I reach? When will I reach? And it appears, oh, it is so, that time appears to be so long. So it is just a feeling of that, having a time as a long or short is just an feeling or just an imagination within. So Desh or Kal, this is also just an imaginary thing. So she also gives an example of how that Purana stories of Harishchandra, he just in one night he experiences 12 years.
And it happens to us also. If we are dreaming about something, does it take time for that us to dream something? No, suddenly you see yourself as big, suddenly you see yourself at doing anything, suddenly you can see yourself as flying. Whatever you wanted to see, you see within no matter of time. You spend so much of time in the dream. The moment you come out of the dream, where that time has gone, you are just here. Within few minutes, you experience so many years of experience into the dream. Because that is a different thing and this is a different thing. So the Desh and Kal concept may be different in different time frames, or even in that time frame or this time frame, anyway, that is not real, that is also imaginary. So likewise, Saraswati keeps on explaining her, Lilavati keeps on asking more and more questions to Saraswati, and Saraswati keeps on answering. So that is a very beautiful journey that we see in this story. अभी हम लोग इसका थोड़ा हिंदी में अनुवाद देख लेते हैं और फिर इसको हम लोग चर्चा सत्र के लिए इसको खुला कर देंगे। तो हमने अभी हम लोग उत्पत्ति प्रकरण में पहुंच चुके हैं, 3rd चैप्टर ऑफ योग वाशिष्ठ, और वहां पे हमने लीलावती, पद्मराजा और सरस्वती की जो आख्यान है, मंडपा आख्यान और लीलावती की जो कथा है, उसका हम लोग यहाँ पे अभी श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टोरी इस तरह से आगे बढ़ती है। इस तरह से होता है कि एक पद्म राजा करके होते हैं और उनकी रानी लीलावती होती है। वो बड़े ही आनंद के साथ अपना जो दिनचर्या होता है, जो अपना जो वैवाहिक जीवन होता है, उसको बिताते रहते। पद्म राजा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, हैंडसम पर्सन. रानी लीलावती इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंड बोथ ऑफ दे आर लिविंग वेरी गुड लाइफ. वो अपना जीवन जो है वो बहुत ही आनंद के साथ बिताते रहते हैं. लेकिन लीलावती के मन में एक दिन यह ख्याल आ जाता है, क्या यह कंटिन्यू रहेगा? हम लोग तो एक एक दिन मृत्यु के करीब पहुंच रहे, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए और मेरे हस्बैंड की मेरे पहले यदि डेथ हो जाती है तो कैसे मैं इसको रहूंगी, मैं तो ये सही नहीं पाऊंगी. इस तरह के विचार उसको सताते हैं. तो अपने लोगों को बुला के उनसे प्रश्न पूछती, पंडितों से कोई उत्तर नहीं मिलता. तो फिर वो खुद ही तपश्चर्या करके सरस्वती को प्रसन्न कर लेती है. सरस्वती आके उनको वरदान दे देती है कि तुम्हारा जो पति का जो आत्मा है, वो जीवात्मा है, वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, वो यही इसी मंडपा में रहेगा. मंडपाख्यान जो है उसमें ये मंडपा में रहेगा और जब भी तुम मेरा स्मरण करोगी मैं आ जाऊंगी. फिर ऐसे करते करते वो अपने दिन गुजारते, महीने पास हो जाते हैं, वर्ष बीत जाते हैं. एक दिन अपने पद्म राजा की मृत्यु हो जाती है और वो बड़ी दुखी दुखी सी फिर सरस्वती जी का ध्यान करती है. सरस्वती वहां पे आके उनको एक यथासंग प्रक्रिया बताती है कि कैसे वो बॉडी को रख सकती है फूलों का आच्छादन में, ताकि वो पेरिश ना हो, या एंड उनका जो जीवात्मा है वो भी, सोल भी वहां पे वही मंडप में रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा. और फिर वो रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है, यह लोक में तो यह बॉडी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं तो इस स्थूल शरीर से इस लोक में हूँ, मैं अपने राजा से कैसे मिलूं, आप कृपया मुझे बताइए. ईश्वर की विनंती करती है तो सरस्वती उनको फिर वो सिखा देती है सब कुछ, कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, कैसे इस स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म अतिवाहिक शरीर रूप धारण करके कैसे जाके चिदाकाश में देखना है. तो वही करती है, ध्यान करती है, अपने स्थूल शरीर को छोड़ के अतिवाहिक शरीर सूक्ष्म देह से वो चिदाकाश में प्रवेश कर लेती है. तो उसको फिर वहां पे जो दृश्य दिखाई देता है उससे बड़ी वो सरप्राइज हो जाती है. उसको वो पद्मराजा 16 साल का दिखता है. वहां पे सारे जो मंत्रीगण होते हैं वो भी होते हैं. वहां पे एक सभा चल रही होती है. ये सब कुछ देख के वो हैरान हो जाती है. लौट के आते हैं, अपने सभी मंत्रियों का सभा बुलाते इन द मिडल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि में. और फिर वो देख के उसको शांत हो जाता है, नहीं नहीं, ये लोग तो मरे नहीं है, ये सृष्टि ऐसे की ऐसी है. लेकिन फिर इसको देख के उनके मन में फिर से वही प्रश्न आ जाता है. बात करे त्याला त्याच्या याच्यावर कॉल कर, दुसऱ्या मोबाईल, आय एम इन द सेशन. सो बड़ा ही हैरान हो जाती है कि ऐसे कैसे.
तो सरस्वती जी का स्मरण करती है, उनको बुलाती है और फिर उनसे बताती है कि ये जो कुछ भी अभी मैंने देखा, ये तो मुझे बिल्कुल लगता है कि इसमें से कौन सा सच है। क्या ये सच है जो अभी मैं हूँ यहाँ पे, ये सच है, या वो सच है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जो अभी जो जाके देखा वो सच नहीं है, और जो यहाँ पे है वो सच है। इस तरह से वो अपना ओपिनियन सरस्वती को बताती है और कृपया मुझे मार्गदर्शन करे, इस तरह से विनंती करती है। तो गॉडेस सरस्वती बोलते हैं कि जो तुमने वहां पे देखा वो भी सच नहीं है, वो भी मिथ्या है, और जो तुम यहाँ पे अभी ये जो चल रहा है ये भी मिथ्या ही है। हम्म? तो ये तो इसको समझ में आता नहीं है ठीक से, तो बोलते हैं आप मुझे ठीक से समझाओ कि किस तरह से ये है ना। तो फिर वहां पे जो अपने सरस्वती रहती है वो उनको बताती कि देखो, तो ये सब कुछ जो अपना काम कर्म और विद्या जो होता है, जिस तरह के संस्कार हमारे ऊपर हमने बना के रखे होते हैं, उसी वजह से तुम्हें ये सब संसार अभी का जो है ना वो रियल लग रहा है और वो तुम्हें मिथ्या लगता है। लेकिन वो जिस तरह से जो मिथ्या है वैसे ये भी संसार ही मिथ्या है। जिस तरह से हम लोग कोई सपने में कोई चीज देखते हैं, वो जैसे स्वप्न खत्म होने के बाद खत्म हो जाती है, वैसे ही यह संसार भी ऐसे ही मिथ्या है और ऐसे ही लोप हो जाता है। इसको ये बात थोड़ी हजम नहीं होती, तो फिर वहां पे सरस्वती उनको लीलावती को और एक कहानी सुनाती है। तो वो बोलते हैं कि देखो, ये जो सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, यह जो अपने ब्रह्मदेव है वो चिदाकाश में ही यह संसार नामक रूप मंडप यहाँ पे तैयार हो गया है। उसके ऊपर जो आकाश रहता है वो एक छत की तरह वहां पे होता है। वहां पे जो एक मेरु पर्वत है वो उसके वो स्तंभ के भांति उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे सब इंद्रादि लोकपाल सारे इंद्रायणी जो रहते हैं, यहाँ पे वो 14 भुवन है, ये स्वर्गलोक भूलोक पाताल लोक ऐसे 3 मंजिलों की तरह यहाँ पे है। यहाँ पे जो सारे नदियां पर्वत सारे ये सब है यहाँ पे फिर वो सूर्य एक दीपक के भांति है। यहाँ पे सब ये एक मुंगियों के भांति, एंड्स के भांति, वारुणों के भांति यहाँ पे सब ये प्राणी मात्रा फैल चुके हैं, नगर यहाँ पे इन्होंने बसा लिए हैं। तो ऐसे ही इस संसार रूपी मंडप में यहाँ पे एक प्रजापति ब्रह्मदेव की कृपा से यह सब लीला से सब कुछ होता है। वहां पे एक ब्राह्मण रहता है। तो ब्राह्मण का नाम रहता है वशिष्ठ और उनकी पत्नी रहती है अरुंधति। अभी ये अपने जीवन को भी अच्छी तरह से बिताते रहते हैं और वह अपना पूरा दिन प्रक्रिया जो रहती है, रूटीन रहते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं। एक दिन यह ब्राह्मण जो है वह भ्रमण के लिए जाता है बाहर, तो वहां पे राजा की सवारी और उनका पूरा ऐश्वर्य के साथ वो वहां पे उनको घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके मन में प्रश्न आता है, बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है कि कैसे राजा वो हाथी के ऊपर उनकी सवारी निकलती है और किस तरह से यह सुख का अनुभव वो लेते हैं, किस तरह से उनके साथ अप्सरा हो जैसी उनके साथ स्त्री होती है, किस तरह का उनका साधन और संपत्ति उनके पास होती है, कितने सारे नौकर चाकर उनके पास होते हैं। यह देख के जो वशिष्ठ ब्राह्मण रहता है उनके मन में यह लालसा उत्पन्न हो जाती है कि काश मुझे भी ऐसा ये मिले, मैं भी ऐसा ही राजा बन सकूं। यह होता है और फिर कुछ देर बाद, कुछ वर्षों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर सरस्वती उनको बताती है वो वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे वही तुम्हारे पद्म राजा है, और जो अरुंधति उनकी पत्नी थी वही तुम लीलावती हो। और वो अरुंधति ने भी ऐसे ही तप किया था, ऐसे ही मुझे प्रसन्न किया था, और इस तरह से ही वरदान मान के वही है। तो उस ब्राह्मण का जीव अभी भी उनके घर में वैसे ही है, शरीर वहां पे वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन उनकी जो ये तृप्त अच्छा थी, वो जो डिजायर्स थी, वासनाएं थी, उसी से उन्होंने यह अपने ही चित्ताकाश में यह नया अपना जन्म देख लिया, और इस जन्म में तुम उनकी पत्नी बन गई और इसको वो देख रहे हैं वही वहां पे ही बैठ के। जो यहाँ पे बैठ के जो अपने तुम्हारे पद्म राजा यहाँ पे इस मंडप में बैठ के वो सब कुछ वहां पे देख रहे कि वो उधर उन्होंने वो राज दरबार हो गया है, वो 16 साल के हो गए और वो अपना राज्य कारभार वहां पे चला रहे हैं। इस तरह से इसको यहाँ पे सरस्वती बयान करती है। तो भी लीलावती तो ऑब्वियस है कि उनके मन में प्रश्न आएंगे, ऑब्वियस है कि उनके मन में कई सारे शंकाएं उत्पन्न होगी। तो लीलावती कहती है कि ये तो मुझे बड़ा विसंगत लगता है।
जैसे आप बोलो कि कोई एक छोटी सी चींटी ने हाथी को उठा लिया, नो? जैसे किसी छोटे से बर्ड ने छलांग मार दिया और आकाश के परे चला गया ना। ऐसे कई कई सारे उदाहरण दे के बताते हैं कि ये तो मुझे बिल्कुल असत्य लगता है, ये थोड़ा बड़ा फेक सा लगता है, ये विसंगत लगता है, और मेरा तो मन इसको मानने के लिए कदापि तैयार नहीं है। तो कृपा करके मुझे और थोड़ा मार्गदर्शन करें कि कैसे ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। आई डोंट एग्री टू दिस। सो इस तरह से उनके मन में प्रश्न आता है। फिर सरस्वती उनको समझाती है कि देखो, आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ रियल है, लेकिन इन रियलिटी जैसे वो ब्राह्मण जो अरुंधति है वो भी अनरियल है, और ये उन्होंने जो स्वप्न देखा ये तुम्हारा जीवन भी अनरियल है, और जो अभी आपने जो देखा कि वो नेक्स्ट है वो भी सब अनरियल है। हाँ? ये जस्ट उस ड्रीम के भांति है, जैसे स्वप्न में हम लोग देख लेते हैं कुछ चीजें, यह उसी के भांति है। तो लीलावती और कंफ्यूज हो जाती है, थोड़ा सा और उनको पूछती है। तो बोलती है, देखो देखो, आपने तो बताया कि उसको जो ब्राह्मण को मरे हुए 8 ही दिन हुए हैं सिर्फ, तो वो यह कैसे हुए? यहाँ पे तो मैंने कई साल बिता दिए, तो यह कैसे संभव है कि वहां पे सिर्फ 8 दिन नहीं हुए, तो यहाँ पे हमने कई सारे साल यहाँ पे बिता दिए, पूरे जीवन तो मैंने अपने पति के साथ यहाँ पे जी लिया, ये कैसे होता है? तो फिर सरस्वती उन्हें बताती है, देखो बेटा, आपको ठीक से अभी आप जानते नहीं हो। तो ये बोलते कि दिशा और ये काल का जो अपने मन में कंसेप्ट इतना दृढ़ बना लिया है संस्कारों के वजह से, यह दिशा और काल का जो कंसेप्ट है यह भी मिथ्या ही है। एक जगह पे देश और काल का अलग कंसेप्ट हो सकता है, दूसरी जगह पे वो अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है। यहाँ पे वो भी बात बताते हैं ना कि कैसे मनुष्य का जीवन, फिर वो कैसे कल्प हो जाता है, कैसे ब्रह्मा का जीवन, फिर कैसे वो विष्णु का कैसे हो जाता है, कैसे मल्टीपल टाइम, कैसे वो ना इतना पूरा जीवन इसका, फिर वो एक दिन इसका, पूरा जीवन इसका एक दिन, इस तरह से विष्णु का पूरा जीवन इस शिवा का एक दिन, इस तरह से काल की जो अलग अलग मापन है उसको बताया गया है। लेकिन ये दिशा और ये काल मापन ये भी मिथ्या ही है ना। तो कैसे जब हम लोग बड़े बड़े सुख में होते हैं, तब कैसे हमें वो छोटा बहुत ज्यादा लंबा समय भी ऐसा लगता है क्षणों जैसा कि अरे ऐसे ही बीत गया। हम लोग बैठे बोलते हुए ना, अरे 10 साल गुजर गए, पैसे पता ही नहीं चला कैसे गए, बिकॉज यू आर लिविंग इट हैप्पीली। और जब आप दुख में होते हो तो ऐसा लगता है कि अरे यार, एक दिन भी बड़ा ऐसा लंबा लंबा एक साल जैसा लगता है, गुजर ही नहीं रहा है। अक्सर ये अनुभव जब हम लोग ड्राइव करते रहते हैं उस वक्त भी हमें होता है कि जैसे जैसे अपना 4-5 घंटा, 7-8 घंटा, 9-10 घंटे का सफर तो ऐसे ही गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन, जैसे ही वो कार अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने लगती है, तो ऐसा लगता है, ऐसे अंदर से ऐसा लगता है कि अरे यार, कब कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। वह वेट जो आ जाता है, तो वह क्षण बड़ा लंबा लंबा लगने लगता है। तो बोलते ये सब काल और देश सापेक्ष है, इसको तुम इसको जस्ट ऐसे रियलिटी की तरह मत देखो। तो फिर आगे चल के लीलावती बोलते हैं कि ठीक है, फिर ऐसा है, ऐसा हो जाता है, फिर जब मैं ही सिर्फ सूक्ष्म देही हूँ तो फिर ये मेरे शरीर का मेरे बाद क्या हो जाएगा? तो बोलते यह प्रश्न उसी प्रश्न के भांति है कि तुमने अंधेरे में किसी को डोरी को जो रोप था उसको तुमने सर्प मान लिया, और जैसे ही उजाला होता है तुम्हें प्रतीत होता है कि अरे ये तो डोरी थी और ये सर्प नहीं था। तो फिर उस वक्त आप पूछते हो क्या, फिर सर्प क्या क्या हो गया? तो सर्प जो दिखाई दे रहा था वही भासमान था, भ्रम होता था। वैसे ही तुम्हारा यह जो शरीर है यह भी भ्रम ही है। ये प्रश्न पूछने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, ये भ्रम ही है, वो कुछ नहीं, उसका कोई ऐसे भी कुछ होने वाला नहीं है। इस तरह से सरस्वती यहाँ पे उनको कंसोल करते हुए, समझाते हुए दिखाई देती है कि यह बात ठीक से मान लो कि यह सब भ्रम है और यह सब खेल चल रहा है, इसी तरह से होता है। लेकिन जो अपने पास पूर्व संस्कार होते हैं उसकी वजह से ये हमें प्रतीत नहीं होता। तो बोलते कि ठीक है, मेरे को तो समझ में आया कि जो अपने मेरे पति थे अभी, उनके ऊपर जो पूरी जिंदगी उन्होंने राजा करके बिताई, तो उनके ऊपर वो संस्कार हुए थे और उसके लिए उन्होंने नया जो जन्म देखा मैंने उनका, उसमें वो राजा बन गए। लेकिन वो ब्राह्मणों के ऊपर क्या ऐसे संस्कार कि वो राजा बन गए? तो बोलते इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है।
जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, क्या स्वप्न में हम लोग वही देखते हैं कि जो अपने ऊपर संस्कार हुए? नहीं, इट्स जस्ट अ फैंटेसी। कुछ भी देख सकते हो आप, कुछ भी बन सकते हो, एक स्त्री पुरुष बन सकता है, पुरुष स्त्री बन सकता है, बर्ड्स बन सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी नहीं, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है। पूर्वा संस्कार से जो हम लोग स्वप्न में देखते हैं उसका कोई लेना देना ही नहीं है। उसी के भांति जो कार्य कारण भाव जो हम लोग यहाँ पे बहुत दृढ़ मानते हैं, लेकिन यह जो सृष्टि है यहाँ पे कार्य कारण भाव जो उत्पत्ति हुई है, जो ब्रह्मन है वहां से जो शिव है वहां से जो उत्पत्ति हुई है, यहाँ पे उसका कोई कारण ही नहीं है। नो, कोई कार्य कारण भाव यहाँ पे अस्तित्व में ही नहीं है। जो ब्रह्मदेव है वहां पे जो चिदाकाश में, उसका कोई कार्य कारण भाव नहीं है। हम्म? लेकिन आपको यहाँ पे लगता है देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण भाव है, आपको ऐसा प्रतीत होता है, बस सिर्फ अज्ञान के कारण। सो ये अज्ञान को जैसे हम लोग दूर कर देते हैं ध्यान करके, मेडिटेशन करके, जैसे ही हम लोग यह विषयों का, यह बाह्य जगत का त्याग कर देते हैं, अपने अंदर स्थित हो जाते हैं, जैसे ही हमें आत्मानुभव स्वानुभव बन जाता है, वैसे आप उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। बोलते मैं देख रही हूँ अभी तक जो हमने देखा, जिस तरह से तुम में परिवर्तन आने लगा है, कई हद तक तुम्हारी कई सारा मन शांत हो चुका है। हे लीले, तुम्हारा मन शांत हो चुका है। हम्म? तो तुम इस अनुभव को कंटिन्यू करो, तुम बहुत अंश मुक्त ऑलरेडी ही हो गए हो। नो, तो इस कहानी से हमें क्या देखने को मिलता है, इस प्रकरण से हमें क्या सीखने को मिलता है? नो, ये सारा जगत मिथ्या है, हम जो है वह वही आत्मन है, वो किसी परमात्मा से अलग नहीं है, यह सब अनरियल है दृश्य जो है। और जैसे जैसे हमें वो स्वानुभव होने लगता है, तो इसी क्षण में हम लोग मुक्त होने लगते हैं। उस मुक्ति का अनुभव लेने लगते हैं। यह सीख हमें यहाँ से मिलती है। सो अभी हम आपके लिए इस सत्र को खुला कर देते हैं। ओवर टू यू ऑल। यदि आपके मन में जो भी आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ इसके बारे में व्यक्त होना है तो भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं इस सत्र को खुला कर देता हूं आप सभी के लिए। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। If you'd like to express yourself, you can unmute yourself and express. हाँ अनघा जी बोलिए। कार्यकारण भाव मिथ्या आहे म्हणतात, आणि तरी सुद्धा असं सगळ्या धर्मग्रंथात सांगतात की आपल्या पूर्वकर्मानुसार आपल्याला जन्म आणि शरीर सुंदर मिळणं, वाईट मिळणं वगैरे हे आपल्या कर्मावर अवलंबून असतं. तर हा, तर कसं आहे की हे जे संत ऋषीमुनी ज्यांनी हे सगळं ज्ञान लिहिलेलं आहे किंवा त्याच्याबद्दल भाष्य केलेलं आहे, ते माणसाच्या मनाला खूप चांगल्या प्रकारे ओळखतात. दे हॅव रिअली अंडरस्टूड दिस ह्युमन माइंड. म्हणून त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मागे अशा लावून दिलेल्या आहेत, जेणेकरून आपण आपल्या मार्गावरनं भटकू नये. जसं जसं हे ज्ञान प्राप्त होत जातं, त्या वेळेला मग आपल्या हातातनं जे कर्म वगैरे घडतात ते सगळ्या गोष्टींपासून मुक्त करतात. त्या कर्माचा काही आपल्यावर काही असा फरक पडत नाही. देन वी जस्ट एक्झिस्ट ऍज दो वी डोंट एक्झिस्ट. वी जस्ट कीप डूइंग आवर कर्मास एंड इट डजंट क्रिएट एनी, the fruits of the karmas also doesn't matter, but till that point of time whatever is said, that knowledge is the only refuge for. जब तक उस मुक्ति का अनुभव हम लोग कर नहीं लेते, तब तक यह शास्त्रों का ज्ञान, तब तक यह गुरु वचन जो हमें बोले गए हैं, तब तक जो अपना स्वानुभव है, इन तीनों के साथ रह के अपना पुरुषार्थ करना
हमें आवश्यक है। एक बार मुक्त हो गए तो ये कोई मायने नहीं रखता है। It doesn't matter. It doesn't matter for the enlightened whether they do puja or do this and that. It doesn't matter, but still they do. Why? Just to set an example, good example in front of people. Just सबके सामने वो संस्कार या वो ये रखने के लिए वो करते हैं। अरे उनको कोई जरूरत नहीं होती, वो मानस पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो करते रहते, दिखाई देते हैं। तो यही है कि जो कार्य कारण भाव है, जो एक्चुअल जो सृष्टि का जो उत्पत्ति है, वहां पे ऐसा कोई कार्य कारण भाव नहीं था। तो यह तो हमने ही बना लिया कंसेप्ट है अपने मन ही मन में, और इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के इसको अब बढ़ा के ये सारी बातें फिर बताई गई है कि ताकि आप गलत राह पे ना चल जाए। हाँ, वो सिर्फ कंसेप्ट का फिर वो स्वर्ग लोक है, यह सब यहाँ पे बताया गया है कि भाई तुम बुरे कर्म करोगे तो फिर अब बुरा कर्म भुगतना पड़ेगा फिर, है ना। सारी चीजें लगाई और अनुभव में भी तो आता है ना, देखते तो है ना कि जो लोग बुरा कर्म करते हैं उनको कहाँ कौन सा ये होता है, ये सब तो दिखाई देता है ना। तो देखिए मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, मैंने मॉर्निंग के सत्र में भी इसके बारे में कहा था कि जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं इसके बारे में बात करते हैं, जब अपने जीवन में इसको उतारने का वक्त आएगा और इम्प्लीमेंट तो करेंगे भी, जैसे श्रवण हो या फिर मनन हो जाएगा, फिर निधिध्यासन अभ्यास होगा, तो इसको हम लोग अपनी जिंदगी में उतारेंगे। तो वो कॉन्टेक्स्ट जरूर देख लेना कि क्या उस कॉन्टेक्स्ट के लिए या नॉलेज जो है या इंफॉर्मेशन के तौर पे देख लिए इसको, क्या वो एप्लीकेबल है तो उसको उतारिए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली गुरुदेव का एक वीडियो देखा, उसमें गुरुदेव वाज टॉकिंग टू यंगस्टर, अपने यंगस्टर से गुरुदेव बात कर रहे थे। तो पूरे सेशन में तो एक 20 मिनट का सेशन था, 18 मिनट तक तो पूरा उनके प्रश्नों के बिल्कुल जैसे सब कुछ रियल है ऐसे ही उत्तर दे रहे थे। कैसे उनके प्रश्न को अच्छे से उत्तर देके उनको उनके शंकाओं को दूर कर रहे थे। लेकिन जब आखिरी में के 2 मिनट में एक रैपिड फायर राउंड तैयार होता है और वहां पे को वह जो स्टूडेंट रहती है वो प्रश्न पूछती है कि गुरुदेव आपके जीवन का अचीवमेंट क्या है, वो जिसके बारे में आप प्राउड फील करो, जिससे आप गर्व आपको हो, ऐसा कौन सा अचीवमेंट आपके जीवन में है। तब जाके बोलते हैं कि यह वो तो अनरियल है, यह तो असत्य है, तो फिर किस चीज का प्राउड होना। देखो जो बोलने से यदि कुछ बता देते तो एन आयोटा ऑफ अहंकार कैन कम, उस वक्त बोलते अनरियल है। तब तक 18 मिनट तक ये वर्ड पूरा रियल रहता है और उनके पूरे प्रश्न के उत्तर प्रॉपरली देते हैं। तो यह बात योग वशिष्ठ का नॉलेज सुन लिया, फिर जाके वहां पे के स्टूडेंट क्लास में बैठा है, बोलेगा अरे मेरे को पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो अनरियल वर्ल्ड है। तो यह इस तरह से कुतर्क होने का एक कुतर्क हो गया, नहीं हुआ ये संभावना है। तो कुतर्क में ना फंसे, अपनी सिचुएशन को देखे, उस सिचुएशन को क्या अप्लाई होता है उस तरह से आपको अपलिफ्टेड फील हो। आप जब ऐसा लगता है ना किसी ने आके कुछ बोल दिया आपको गाली, अंदर बहुत उथल पुथल हो रहा है, उस वक्त बोला अरे दिस इज अनरियल वर्ल्ड। आपको बड़ा दुखी लग रहा है, बोला अरे छोड़ना, वैसे भी दिस इज अनरियल वर्ल्ड। जब भी आपको लगता है कि मैं दुखी हो गया, जब भी आपको लगता है कि मैं किसी चीज में फंस गया, जब भी आपको लगता है कि मैं द्वंद्व में फंस गया ना, तब बोल देना अरे दिस वर्ल्ड इज अनरियल। हो सकता है कि दिस इज डबल स्टैंडर्ड, कोई बात नहीं, जब तक तुम मुक्त ना हो जाओ तुम्हारा पुरुषार्थ करते रहो, इस तरह का डबल स्टैंडर्ड अप्लाई करते रहो, किसी भी कॉन्सेप्ट में मत फंसो, सारे कॉन्सेप्ट से भी मुक्त हो जाओ, मुक्ति का अनुभव होगा। क्योंकि बुद्धि के परे जाना है मुक्त होने के लिए, और बुद्धि के परे जाना ही कॉन्सेप्ट से मुक्त होता है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि मौन को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, मन को मारने के लिए मन का ही सहारा लेना पड़ता है, बुद्धि के परे जाने के लिए बुद्धि और विचारों का ही सहारा लेना पड़ता है, इस अविद्या को नष्ट करने के लिए अविद्या का ही सहारा लेना पड़ता है। बड़ा आश्चर्य है, बट ऐसा ही है। धन्यवाद। जय गुरुदेव। और किसी को कुछ कहना है या कुछ प्रश्न पूछने हैं तो पूछ सकते हैं भैया। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तरह का जवाब दिए गुरु जी जैसा, जैसे अर्जुन ने पूछे
कि कर्मण्य बाधि कदाचन। अगर कर्म का फल का आशा नहीं रहेगा तो आदमी काम कैसे करेगा? काम करने का इच्छा ही नहीं रहेगा तो काम क्यों करूं? तब भगवान ने बोलते हैं माने भगवान भी बहुत चालाक है। वो बोलते हैं कि नहीं, काम तो करना चाहिए तुम्हें, लेकिन निरासक्त होकर काम करो, है ना? तो इसी तरह का जवाब भी गुरुजी ने देते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही बात बोला रमा जी। तो गुरुदेव है ही कृष्णा स्वरूप, है ही बुद्ध स्वरूप, है ही शिव स्वरूप। तो ऐसे जवाबों की अपेक्षा तो हम लोग उनसे कर ही सकते हैं। हाँ, तो I second your thoughts. हाँ भैया। थैंक यू सो मच रमा जी। हाँ, किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो जरूर आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और पूछ सकते हैं। यदि मन में कोई प्रश्न नहीं है तो आप अपने आप को व्यक्त भी कर सकते हैं कि आपका क्या अनुभव रहा। इतना सुंदर यहाँ पे आख्यान चल रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग मिराकुलस आख्यान चल रहा है, कई सारे प्रश्नों की संभावनाएं होती है। तो आपको ये सुन के क्या लगा, आपका अनुभव क्या कहता है इसके बारे में, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इट्स ओके टू शेयर योर एक्सपीरियंस आल्सो। मोक्षाचे 4 द्वारपाल, आत्म संयम, विचार वगैरे अशी गंभीर म्हणतात की या गोष्टी काय आहेत, तुम्ही तुमचं फक्त 100% द्यायचं आहे. संतोष, सत्संग वगैरे सगळ्याचा परिणाम काहीतरी होत असला पाहिजे असं वाटतं ना. जब अच्छा परिणाम हो रहा है तो बोल देना हाँ हाँ ये रियल है। जब लगता है कि अरे समथिंग मेरे को तो बोलना नहीं अनरियल है। ऐसा नहीं होगा ना तो बोलोगे सेवा भी नहीं करोगे, फिर साधना भी नहीं करोगे ना, तो फिर कुछ है। ये ज्ञान जो है दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार को सही प्रयोग करना है, उपयोगी बनना है, निरुपयोगी नहीं बनना है। नहीं जाना है, वितर्क में नहीं, मतलब कुतर्क में नहीं फंसना है, वितर्क में नहीं फंसना है। बड़ा अमेजिंग है। ओके भैया पूरा गीता का जवाब तो मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। मैं तो रोज पढ़ती हूँ तो रोज ही कंफ्यूजिंग लगता है। भगवान ने एक बार इस तरह बोलता है, एक बार उस तरह बोलता है, एक बार इस तरह बोलता है, एक बार उस तरह बोलता है। बोलते हैं ना, सत्य जो है ना वो ट्रूथ, वो कोई लीनियर नहीं है, वो कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है एक दूसरे से। और जैसे ही थोड़ा सा व्यू पॉइंट चेंज हो गया तो वो सत्य बदल जाता है। सत्य क्या है बेसिकली, कि जो बदलता नहीं है, मतलब जो चेंज नहीं होता है। ये शरीर तो बोलते चेंज हो जाता है, ये मन चेंज होते रहता है, लेकिन जो अंदर कुछ है, जो हम, जो आत्मा या शिव या ब्रह्मन, जिस अलग अलग नाम से पुकारते, वो कभी बदलता नहीं है। हाँ? तो बाकी के जो बाहर के आउटर चीजें जो दिखती है कि बहुत फर्म है, वो तो बदलती रहती है, बोलते हैं वो सत्य नहीं होता है। सो इसलिए हम लोग जो परसीव करते हैं एज अ सत्य, वो तो चेंज होते रहते हैं, वो पूरा सत्य नहीं होता, अर्ध सत्य होता है। Can I add to that a bit? Yeah, Sangeeta ji, why not? Thank you. Very nicely expressed by Someshwar ji today. कितना प्यार, इतना अच्छा आपने वो मिसाल बताया लीला का, सरस्वती का, that story. It's so beautifully said. And now also what you're saying is, you know, कि हमको ये जो knowledge है ना, जो हम जिंदगी में जी रहे हैं, you know, again, it's like एक एग्जाम्पल आ रहा है कि एक पायलट अगर प्लेन जब उड़ाता है, ओके, पहले वो कितनी स्टडी करता है उसके बारे में। एक प्लेन उड़ाने के लिए उसको कितना लिखना पढ़ना पड़ता है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है ना, तो जाके वो पायलट बनता है। अभी वो प्लेन ऊपर है, बीच आसमान में है ऊपर, अभी वो प्लेन सपोज क्रैश हो रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस टाइम वो बुक पढ़ेगा क्या,
कौन से पेज में क्या लिखा था, कौन सा बटन दबाऊं, रेड दबाऊं क्या, येलो दबाऊं क्या, ग्रीन दबाऊं क्या, क्या कर, वो करेगा क्या? नहीं. What he will use is common sense, what he has studied. Exactly, I'll tell you, the sixth sense is your common sense. You know when to apply what? It's the thing. कब क्या यूज करना है ना. अभी ये सब टूल्स है हमारे पास, यू नो, माइंडफुलनेस है, कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है, और यू नो जो भी हम पढ़ते हैं, यू नो, जगत एक ड्रीम है, जो भी ये सब हमको सिखाया जा रहा है, टूल्स है, लेकिन अप्लाई कौन सा क्या करना है ना, वो अपने हाथ में. दैट इज द पॉइंट. सो आई फील कि अगर हम कॉमन सेंस ज्यादा यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि व्हेन टू यूज व्हाट. इट इज सो नाइस. एब्सोल्युटली. और उसी को विवेक कहते हैं ना, बोलते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं ना कि अपने अंदर वो सत विवेक बुद्धि जागृत हो जाए. लेट दैट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग let dawn in that Yes, we will have that. you get that inner voice. If you listen now, you will get that inner voice from you. पर हम क्या करते हैं, you know, it's echoing. Just like, you know, like yesterday जब काशी भैया ने कहा कि there are so many possibilities, you know, it opens the doors, this, that, कितने खुश हो जाते हैं. But ultimately what it is, it's your own manifestations again to open those possibilities, isn't it? अभी वो है. Absolutely. I asked one of my colleague, you know, I said, then how should you do it? बोला एक coin लेते हैं. अभी दो बात है, दो दरवाजे खुलते हैं, you know, A and B. Every time you enter, there are two doors, A and B. If you go in A side, these are the consequences. If you go in B side, these are the consequences. Now you know exactly, you know what you have to do. But then still, what we do, you know, we keep on asking everybody, you know, वो वोट लेने के लिए कि उन्होंने देखे क्या होता है, देखे वो क्या बोलते हैं, कैसे होता है. My colleague told me, take a coin, just start tossing it, okay, with both. अभी head आया तो ये है, tail आया तो ये है, A and B, whatever, okay. The minute it goes up, no, your mind will tell you exactly what you want till it comes down. You take the coin in your hand, don't even open it. You know, you got the answer what it is. Just keep the coin inside, but you will get the answer. So every time, you know, जो परमात्मा, जो साक्षी जो है, जो विटनेस अंदर है ना, वो हमको अपना आंसर देते रहता है. लेकिन हम वेरीफाई करने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, यू नो. इवन दैट इज द पॉइंट. कभी डाउट में जाएंगे, कभी किस में जाएंगे, कभी ए नहीं चाहिए, अभी मालूम है अंदर से जवाब ए आया है, लेकिन मुझे तो बी चाहिए, तो हम लोगों के पास जाते हैं, यू नो, वेरीफाई करने को कि बी अच्छा है क्या, बी को अपनाऊं क्या, प्लान बी ठीक है क्या, प्लान ए अभी मालूम है नहीं चलना है, क्योंकि पर वो अंदर से मालूम है कि प्लान ए ही अच्छा है मेरे लिए. You know, are you getting the point? It's so subtle that mind, you know, it's very subtle. But what happens, what is witnessing, you know? Witnessing is equal to observing plus non-attachment. That is witnessing. When you don't attach yourself to that, but you're observing your mind, then you become a witness. So let's this all practice, you know, ये सारी प्रैक्टिस जो हम योग वशिष्ठ की कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी के लिए ही है कि हम जगत को जब सपना है तो स्वप्न की तरह ही देखे. That is observing without any attachment. That is what it is, and it is so beautiful, no? कितना लिखा है. If you go to see, every verse is telling you, every paragraph is just telling you the same thing, कि world is a dream. How many times are we listening to that? You know, it's very beautiful, and we all coming here, meeting together, and you know, पक्का कर रहे हैं हम एक करके, you know, it is a lesson कि still okay, that world is a dream. Come on, let us witness it. Be the witness of that dream, and come out of that. Today also morning it was so beautiful. ना जब खोया ही नहीं है, पाना और खोना क्या है ही नहीं. Isn't it? So simple it is, but उसको हम कितना ये कर देते, because हमको ये सब सच लगता है ऐसा. So let us have that as a dream and go ahead. No? Isn't it? What do you feel? Yes. Absolutely, संगीता जी, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने
कि हाँ ये सब ड्रीम ही तो है, कहाँ फंसे हो यहाँ पे, निकलो, मुक्त हो जाओ। और मुक्त होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, यही पे अभी मुक्त हो जाओ, यही दैट इज चलते। मेडिटेशन। बोलते हैं कि मर के जिन, मतलब व्हाट इज यूज नो, जी के जो मर गया तो उसने पा लिया। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज व्हेन वी डू मेडिटेशन, दैट इज व्हाट इट इज। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, यू आर वेलकम टू डू दैट। अनम्यूट का ऑप्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल, आप खुद ही अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सचिन जी, नीलू जी, कुसुम ताई, would you like to add something to this? वर्षा ताई, I just have finished my meditation, so I'm realigning still. coming back to the unreal world, huh? Trying to come to the real world. Same with me. So I'm feeling very silent and no words. That's absolutely right. वर्षा ताई, काही बोलायचंय तुम्हाला? कहता है bless you. मैं वर्षा ताई ने थोड़ा वेळ bless you वर्षा ताई. बोला. हाँ बोला वर्षा ताई, येतोय तुमचा आवाज आम्हाला. आवाज आ रही है वर्षा ताई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ. काही बोलायचं आहे तुम्हाला की नाही? हा इतका सुंदर प्रवास चाललेला आहे ना की मंत्रमुग्ध होऊन जी काय प्रश्नांची उत्तर असतात ती सगळ्यांकडनं मिळतच राहतात. त्याच्यामुळे आता पुन्हा काही असं हे वाटतच नाही आणि हे खरंच आहे की हे सगळं भ्रमच आहे, हे मात्र पटतं नक्की. खूप छान वर्षा ताई, थँक्यू सो मच. ठीक है, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी एडेड, और कुछ चर्चा करनी है, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. भैया मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, कभी कोई डिसीजन लेने जाती हूँ, है ना, कभी कोई डिसीजन लेने जाती हूँ, जैसे हम अभी ऋषिकेश आश्रम में वेद निकेतन जो धाम में, उसमें हम लोग एडवांस करने के मन कर रहे हैं, वो जो ऑफलाइन का एडवांस मन कर रहे हैं, तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा लिए, सब करवा लिए, लेकिन सब साइड से ना सब बोलते रहते हैं कि ये अच्छा है, ये नहीं जाना चाहिए, इस उम्र में तुमको नहीं जाना चाहिए, अभी कोविड सिचुएशन है, तो मन ना ऐसे संशय में होते रहता है. लेकिन एक पॉइंट आता है भैया, जब मेरा अंदर का मन कहती है, जैसे अभी संगीता जी ने बताया, सिक्स सेंस बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए, कैसे भी हो हमें जाना चाहिए, हम जाएंगे, तो लास्ट में मेरा डिसीजन एकदम फिक्स्ड हो जाता है. ये हर बार मेरे साथ ऐसे होती है, कहीं कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तो मैंने पहले मेरे मन ना संशय में होते हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं, अच्छा है कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो फिर देखते हैं कि लास्ट में वो संगीता जी का सिक्स मुझे काम किया, और हम लोग एकदम पक्का डिसीजन ले लिए कि हम लोग हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, एडवांस करेंगे, 6 दिन वहां रहेंगे, ऑफलाइन का एडवांस का मजा लेंगे. तो यही होता है कि कभी कोई डिसीजन लेने जाती हूँ ना, पहले संशय में मेरा मन घूमते फिरता है.
यही मैंने संशय जो है ना होते रहता है। बहुत सुंदर रमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड यस, डेफिनेटली संगीता जी ने जो बात कही, अपना अंतर्मन हमेशा हमें मार्गदर्शन जरूर जरूर देता ही है, करता ही है। तो लिसन टू योर इनर वॉइस, दैट ऑलवेज गाइड्स अस। वेरी ब्यूटीफुल। प्रश्न आया है यहाँ पे कि प्रश्न या जस्ट एक्सप्रेशन है? नाइस सेशन, लाइफ इज अ गेम, गिव योर 100% एंड प्ले एंड एग्जिट हैप्पीली। यस। ठीक है, फिर आज का यह सेशन रोकते हैं फिर यहाँ पे। एनीबडी वांट्स टू से समथिंग और एल्स विल जस्ट पॉज। ओके, आज का यह इवनिंग सत्र स्टडी योग वशिष्ठ का हम लोग यहाँ पे स्वल्प विराम लेते हैं, रुक जाते हैं ताकि पुनः एक बार हम लोग कल मिल पाए। जय गुरुदेव।